مسیح یسوع کے عظیم بابرکت و تمام نام میں میرا آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز و خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، ساری محبت، رفاقت اور جلال اور بزرگی کے لیے۔ میرے عزیز و خدا نے کتنا خوبصورت دن دیا، پاک اور سبت کا دن، رات بھر حفاظت کی۔ میرے عزیز و اپنی چرچ سے جائیں اور خدا کی دی ہوئی برکت کو رسیو کریں۔ جب ہم اپنے خدا کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو ہمیں برکت نہیں ملتی، ہمیں سزا مل جاتی ہے۔ اور آج اسی موضوع پہ خدا کا کلام ہے کہ خدا نے شیطان کو بھی کس لیے بنایا ہے، کیونکہ خدا کا ہر ایک مقصد جو ہے وہ بہتری کا سواد ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم کلام خدا سے سیکھتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 16 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے چند آیت پر غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ مرکوم ہے، دل کی تقدیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خدا کی خدا روحوں کو جانتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز کو مقصد کے لیے بنایا، ہاں شریر کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں خداوند کو نفرت ہے، وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شکر اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف سے بدی سے باز آتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے بات ایک کو بیان کرنا ہے۔ شیطان کو بھی خدا نے بنایا ہے، لیکن اس کو کس لیے بنایا؟ برے دن کے لیے۔ خدا نے سب چیزیں انسان کے لیے تیار کی ہیں۔ انسان کو خدا نے بنایا اور شیطان کو بھی خدا نے بنایا۔ انسان کو بنایا کہ وہ میری عبادت کرے گا، اور شیطان کو بنایا کہ وہ برے کام کے لیے ان کو تیار کرے گا، اور جس کے دل میں حماقت ہے، گھمنڈ ہے، ان سے خدا کو نفرت ہے، اور دل کی باتیں انسان جب اپنی روش کو سوچتا ہے کہ یہ میری روش یہ خدا کی جلال کے لیے ہے یا خدا کی مدد سرائی کے لیے ہے یا بری کام کے لیے ہے، تو شیطان کو تو اس لیے بنایا نا کہ برے دن، ہاللیلویا، برے دن شیطان کے لیے ہیں، اور ایک دن آئے گا 1000 سال کے لیے اس کو بند کیا جائے گا۔ 1000 سال اس کو بند کیا جائے گا، اور انسان اپنی روشیں
اپنی خیال، اپنا معاشرہ، اپنی سوچ کے اندر سب چیزیں پاک سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ اپنی جو ہے ہماری وہ ناپاک ہیں، جو خدا کی کلام کے اندر چیزیں لکھی ہیں، جن کے وسیلہ ہم نے اس کی راہوں پر چلنا، اس دعا میں ٹھہرنا اور خدا کی حضوری میں جھکنا اور نیک کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ توبہ کا بائبل کے اندر لکھا ہے، ہم توبہ کرتے نہیں، توبہ سے کنارہ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہماری روش پاک ہے، ہمیں خدا نے اپنے پاس سے بلا لینا ہے، ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ لیکن وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ روحوں کو جانچ رہا ہے، کون سی روح ہے جو میرے پاس آنے والی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہم خداوند کے حضور بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے اور ہم سب اچھے دنوں کے لیے، برے دنوں کے لیے ابلیس کو بنایا گیا، شیطان کو بنایا گیا، آسمان سے گرایا گیا تاکہ وہ حماقت کر چکا، وہ گھمنڈ میں آ گیا، وہ لالچی ہو گیا۔ آج ہمارے اندر بھی جب لالچ آ جاتا ہے تو پھر لالچ گناہ کی جڑ ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، خدا کے نام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمارے اندر جو روح ہے وہ تڑپتی ہے، وہ آہیں بار بار کر رو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ خداوند کا کام کیا جائے اور خداوند اس بدن کو معاف کرے۔ لیکن بدن جو ہے وہ مٹی سے لیا گیا، وہ مٹی میں واپس لوٹنے کے لیے گناہ کے لیے تیار کرتا ہے، بدی کے لیے کفارہ ہوتا ہے، بدی کا کفارہ دینے کے لیے خدا کا خوف ہوتا ہے اور خدا کے خوف سے بدی سے کنارہ کرتے ہیں۔ تو جب بدی سے کنارہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کہاں پہ بھیج دیا جائے گا؟ میرے عزیزو، ہماری زندگی ابلیس کا منصوبہ بن جائے گی، ابلیس کے لوگ بنیں گے، ابلیس کے لوگوں سے نکلنا ہے۔ ابلیس کے لوگوں کے کام برے ہیں، ناچ رنگ اور ان کے اندر نشہ بازی، سناکاری، دعوت پرستی، برے کام، برے منصوبے، برے ارادے، برے خیالات، بری سوچ اور ان کے منصوبے خدا سے دور کر دیتے ہیں اور آہیں رو رو کر بڑے بڑے آنسوؤں کے ساتھ یہ جو آپ کے اندر روح ہے وہ دعائیں کر رہی ہے کہ اے خداوند معاف کر، معاف کر۔ لیکن جو بدن مٹی سے لیا گیا وہ گناہ کے لیے
तैयार कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है, और इब्लीस उसकी पैरवाई कर रहा है, और इब्लीस उसके मंसूबों के लिए उन्हें तैयार करता है, उनकी जिंदगी से जुदा नहीं होने देता। और मेरे अज़ीज़ों, नशा इब्लीस का मंसूबा है, इंसान की रफ्शें खुदा के लिए होनी पाक है, और जब खुदा के लिए रफ्शें नहीं होती तो फिर वो हरगिज़ ना छूटेगा बगैर सजा के, क्योंकि खुदा का कलाम सुलेमान लिख रहा है कि वो बगैर सजा से नहीं छूटेगा। बेशक वो कितना हदिया दे, कितना चंदा दे, कितनी शुक्रगुजारी दे, और कितना चर्च चले जाए, वो खुदा के हजूरी में दीनदार होगा, और वो खुदा से दूर है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें, अपने खुदा के हजूरी में रहें, क्योंकि खुदा रूहों को जांच रहा है कि कौन सी रूह मेरे लिए अपनी रफ्शें, अपनी सोचें, अपने ख्याल छोड़कर मेरे पास आता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की रूह हर वक्त मुझे और आपको देख जांचती है, और खुदा की आँख तुझ पर और मुझ पर, हर एक जिंदगी पर लगी हुई है। जब तक हम अपनी रफ्शों को बदल नहीं लेते, हम कह देते हैं मेरा ये गुनाह करता हूँ, मैं इससे बात नहीं आ रहा, मुझे ये बार बार गुनाह करता हूँ, मैं नस्वार खाता हूँ, मुझे बड़ा हलक कुत्ता है, मुझे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं नस्वार डालूं। ये इब्लीस का मंसूबा है, नशे के लिए मैं भागता हूँ। नशा कैसा भी है, वो इब्लीस का मंसूबा है, खुदा का मंसूबा नहीं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जलाल का भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसे पुकारते हैं, हम उसकी हजूर झुकते हैं। जब वो जलाल का भरा हुआ है तो हमारे अंदर भी उसका जलाल हो, हम उसके लोग हों, हम उसकी नक्शी कदम पर चलें। ऐसा मजाक जैसा यीशु मसीह का है। यीशु मसीह को कोड़े बज रहे थे, तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि कोड़े ना मारे, 1 कम 40 कोड़े मारे गए। यीशु को फिर 1 कम 40 नहीं, 52 कोड़े लगे, 53। तो 53 कोड़ों के साथ कितना गोश्त निकला होगा? 1 पाव 1 कोड़ी के साथ गोश्त निकल आता है, लेकिन यीशु का गोश्त सारा निकल गया, और पिंजर को सलीब पे लटकाया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, यीशु को कबूल करें। यीशु मेरे और आपके दिनों को अच्छा करने के लिए, अच्छा दिन देने के लिए आया हुआ है, लेकिन अच्छे दिनों के अंदर जाने के लिए हमें गुनाह पर, बदी पर, नशे पर गालिब आना है, और जवाब जो है वो खुदा की तरफ से है।
जवाब जो है वो खुदा की तरफ से है कि जब खुदा की हजूरी में नहीं आते तो फिर जल्दबाजी से अबलीस ही बोल पाता है, अबलीस ही बातें शुरू कर देता है। जल्दबाजी अबलीस का मंसूबा है। वो बोलने में दरीग नहीं करता, वो बोलने में दलेरी करता है ताकि दो घर बर्बाद हो जाएं, दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर अबलीस है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले और हमारी रफ्शें पाक हो जाएं और बुरे दिन से बच जाएं, क्योंकि बुरे दिन के लिए अबलीस को बनाया गया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ो, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुज़ुर्गी के लिए। ऐ पाक खुदावंद तो वादों के मुताबिक सच्चा जिंदा आपकी और जलाली बाह है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज खूबसूरत दिन के लिए, पाक और सबत के दिन के लिए। बाप आसमानी जो भी आज तेरे कलाम को सुने, तेरी आवाज़ को सुने, इस दुआ को सुने, तुझ पर ही ईमान लाए और बुरे दिन उसके निकल जाए और बुरे दिन अबलीस के हैं और बुरे दिन के लिए वो बनाया गया है। और खुदावंद जो दुआ को सुने, कलाम को सुने, उसके चंगे दिन उसकी ज़िंदगी में मिल जाए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर करे और सारा जलाल तुझे मिले। आज का तेरे हजूर शुक्र मसूर की माने ठहरे। बाप तो मेरे घर, घराना, बीवी, बच्चों पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक और उसे मामूल कर। आज का तेरे हजूर शुक्र मसूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर शुक्र मसूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र करता, कौमों कबीलों के खुदा में तेरा शुक्र करता। जो इस दुआ को ईमान से सुने शिफा पाए। यीशु सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिल जाए। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर शुक्र मसूर की माने थे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा में तेरा शुक्र गुजार। तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, अबलीस के मंसूबे बंद करे खुदावंद। आज का तेरे हजूर शुक्र मसूर की माने तेरे। बाप आसमानी मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना। तमाम मेरे खादमों, मेरी कौम, मेरी कलीसिया, मेरे घराना अज़ीज़ व क़रीब के साथ होना। अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। शैतान को जब बुरे दिन के लिए बनाया गया तो मेरी यही दुआ है कि खुदावंद उनकी ज़िंदगी को बदले ताकि शैतान के मंसूबे फिर हों और जिंदगियां तब्दील हों, तेरे हसूर बढ़ें और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु तुम बड़ी, हम गति और तेरे नाम को ऊंचा करें। अगुवाई दें। ऐ बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना।
मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की काबीना के साथ रहना, मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मुल्क के और चीफ फौज के साथ रहना। खुदावंद तू अपना हाथ बनाना, बरकत देना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अबलीस की क्योक्तों के मुंह बंद करना। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे रूहानी बरकत दे, मुझे एक कुव्वत दे, ताकि मैं अबलीस के मंसूबों पर गालिब आ सकूँ, अबलीस की चालाकियों को कुचल सकूँ और यीशु नाम को ऊंचा कर सकूँ, ताकि यीशु जिंदा है। यीशु नासरी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा फैलाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी में, मुसीबत में, खुदावंद जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का मंबा तो ही है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जबकि हौद पर आया तो हौद पे एक बीमार को जो 38 बरस से था उसे देखा और उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने कहा कि जब मैं पानी में उतरना चाहता हूँ तो जल्दी से मैं उतर नहीं सकता। दूसरा पानी में उतर जाता है, वो शिफा पाता है। जब फरिश्ता हौद का पानी हिलाता था, जो पहले बीमार उतर जाता था वो शिफा पाता था। और मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने उस बीमार से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। यीशु ने उसी वक्त उसकी सारी बीमारी को दूर किया। आज जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया उनको तो जवाब नहीं देता, उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबों पर पाक रूह की आग नाजिल कर। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा पाए और बरकत पाए और सारा जलाल तुझे मिले। मेरे साथ जितने भी चर्च में खिदमत गुजार हैं उनको बरकत दे, ब्लेस का, अपने जलाल के लिए सरफराज होता। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की मान्यता है। वापस मानी मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो, ताकि दूसरे मुल्कों को अनाज दे सके। वापस मानी मेरी दुआ को सुन, जो पानी के वसीला, बारिश के वसीला परेशान है, जो मुसीबत में है, तो उनके करीब है, तो नज़दीक है, उन पर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें कुव्वत दे, जोर दे, उनकी सारी कमजोरियों को दूर कर और उनकी सारी परेशानी से रहाई निजात दे, ताकि रहाई निजात का मंबा तू ही है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आज हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से हमें दी, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह
قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت، مقدس لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔